You said never let me go. 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन। ज़मीर कुन से उगाता है जो ज़मीन व ज़मन, वही तो है जो हवाओं को दे के इज़्न हराम समंदरों की जबीं पे उभारता है जो शिकन, और झुका मैं सामने उसके तो सुरखुरू भी हुआ। न हाथ शल हुए मेरे न ज़बां में है थकन, न हाथ शल हुए मेरे न ज़बां में है थकन। अस्सलामु अलैकुम। ऑन द बिहाफ ऑफ इंग्लिशन, दिस इज़ मी उमैर मलिक and I warmly welcome you in our second sensational podcast. Englishin has been providing its services since 2018. Englishin gives you the best quality of education. Englishin has 3 campuses. First campus we have in Afandi town, second campus we have in Liaquat colony and third campus we have in Latifabad. All campuses provide you the best quality of education. Englishin helps you to discover yourself. We do not only teach you about education, but we make you able to find out your passion. So this is all about Englishin. So do join us as soon as possible. So let's start our today's sports podcast. I would like to introduce our today's special guest. I don't know what should I say about her. A philosopher, a poet, a public speaker, an intellectual. So without wasting time, ladies and gentlemen, please welcome and one more thing. The brilliant teacher of Englishin, one and only Miss Zobia Ghazi. Yay! Oh my god, I am over the moon. I am indebted to English, and whatever I have become today is just because of English, and I am thankful of English, and especially Sir Haris and Sir Shoaib for giving me such a golden opportunity to speak today. Thank you so much. So thank you. Okay, Miss. So how are you first? I'm great today, sir. How are you? Alhamdulillah, I'm great. So, Miss Zobia, you have been teaching English language since last 2 years, and you have brilliant experience of teaching. So, what do you think? How important English is? Sir, the importance of English is shown in one sentence, and that sentence is English is an international language. International means something that is globally, and when something which is globally, so you exist on this planet. When you exist on this planet, you have no other choice to go somewhere else. So something that is globally a fashion or globally trending, globally important, how that thing cannot be important for you? This sentence itself is quite heavy to speak. Further, up to 67 countries have their national language is English. English as national language. So when such countries have their national language English, whenever you would like to go to visit those countries, or if you want to study anything about those countries, or if you travel, if you're an explorer, so you must know English for that thing. Nowadays we know in Pakistan academies require English. English is the basic need of each and every academy. If you don't know English नहीं आती तो कुछ भी नहीं होगा. English है तो सब है. Yes, exactly. English के बिना आजकल जिंदगी भी अधूरी है. Exactly. तो English ही आपके लिए सब कुछ है. अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा कमाना चाहते हैं, money is honey, so for money and for financial stability, you must understand, you must learn English. English is very important. If you want to talk about history, so history of Europe is written in English. So you will be studying that history in English. For that, English is very important. If you want to do online business, social media, each and every platform is talking about English. There is no scope except English. Wow, what an explanation. Brilliant explanation. You were speaking about the global, means what I experienced myself, that in all over the world, if we see the people except Pakistan, people learn English to communicate, but we Pakistani learn English to pass CSS exam, to pass the PCS exam. Is it true? बेसिकली इंग्लिश एक टूल है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेट करने का. इंग्लिश एक लैंग्वेज है. हमने इसको बना लिया फोबिया, स्टैंडर्ड, शो ऑफ करने के लिए. भाई रास्ते में बोल दिया किसी को तो वो बंदा इम्प्रेस हो जाएगा हमसे. अगर हम रिक्शा वाले को बोलते हैं एक्सक्यूज मी अंकल, तो वो हमसे इम्प्रेस हो जाएगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. इंग्लिश एक सबसे पहले इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन का टूल. तो जब आप कम्युनिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो PCS हो, CSS हो, जो भी एग्ज़ाम आप करना चाहेंगे वो आपके लिए ईजी हो जाएगा. इसको एक मोटिव के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि एज अ लैंग्वेज ओपनली
freely इसको इस्तेमाल करो. So Miss, you are saying that an individual cannot get his or her dream job without English. अच्छा, अगर आपकी ड्रीम जॉब है मैकेनिकल बनना. No, I am talking about the I am talking about the bureaucracy. I am talking about the judges. I am talking about the army officers. Definitely, we are talking about the gazette officer, 17 or 18 grades. Sir, so for that you need English. English is must. You are talking about aptitude test, whatever test you are going to appear there, you must be facing English over there. English is the most important part of each and every test. Narration, passive active, parts of speech, each and everything. And we know that nowadays IELTS is so popular. Without IELTS you cannot study in abroad. You are not allowed to go for higher studies. IELTS is very important and उसके लिए हमें 4 चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग. ये 4 चीज़ें आना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर ड्रीम जॉब है आपकी भाई गधा गाड़ी चलाना, तो आप इंग्लिश में नहीं कह सकते मूव डंकी मूव. मूव डंकी मूव. वी कैन नॉट से दिस. तो आप कह सकते हैं कि भाई इंग्लिश के बिना तो मेरा गधा चल जाएगा. लेकिन ड्रीम जॉब अगर आपकी वो है तो उसमें आपको इंग्लिश. अच्छा, आपने बात की जैसे जॉब की, तो मेरे जहन में एक वो अकबर अलाहाबादी का एक बड़ा मशहूर शेर है कि क्या अहबाब बताएं क्या कारनामा हुए, बीए किया नौकर बने पेंशन मिली और मर गए. सो इज इट द लाइफ? वी डोंट टॉक अबाउट द पैशन, वी डोंट टॉक अबाउट डिस्कवर आवरसेल्व्स. इज इट द लाइफ? No, actually it's not that. We must not make a standard or a line till job or pension or studies, but we must enjoy the life. Life is not just about earning money or getting pension, but it is much more than that. It is to be lived. Okay, Miss, my next question is about schooling. What I experienced myself, that those students who have brilliant experience of schooling, those who have brilliant schooling, so they learn faster than those students who have second grade schooling. So क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आई अग्री टोटली कि स्कूलिंग आपकी बेसिक चीज़ होती है. जब आप प्राइमरी स्कूल से आते हैं तो वो आपका बेस होता है. इफ़ योर बेस इज़ नॉट गुड, हाउ आर यू गोइंग टू बिल्ड अ ग्रेट बिल्डिंग ओवर दैट. बिल्डिंग बेस आपकी अच्छी है तो आप उस पर एक बड़ी इमारत तामीर कर सकते हैं. सिगमंड फ्राइड की एक थ्योरी थी कि एक बच्चे की पर्सनालिटी जो है बस 5 साल में बन जाती है. जो भी अच्छा बुरा मोरल एथिकल व्हाटएवर इट इज, सो इट इज मेड. व्हाटएवर यू डू आफ्टर 5 years दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प दैट मच. तो स्कूलिंग सिस्टम 5 साल की अगर हमारी अच्छी हो जाए तो आगे आकर 9th मैट्रिक, अभी हमारे सेंटर्स में कहाँ के स्टूडेंट आते हैं, यूनिवर्सिटी के आते हैं, कॉलेज के आते हैं, स्टूडेंट्स के आते हैं. क्यों? क्योंकि उनका स्कूलिंग सिस्टम ठीक नहीं है. तो स्कूलिंग सिस्टम हमारा चेंज होना चाहिए, मस्ट चेंज होना चाहिए. अच्छा, यहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम की बात हो रही थी, मेरे जहन में एक वैसी बात है कि अगर हम देखें आज से कोई 10 साल पहले, सो ऐसा होता था कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को दाखिल नहीं करवाते थे ना अकेडमीज़ वगैरह में. अच्छा, जब भी अकेडमीज़ थी ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी ज़्यादा आज हमारे पास हैं कि हर जिस गली से गुजरो आपको 3-4 अकेडमी सेंटर्स नज़र आ जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स नज़र आ जाते हैं. तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन सेंटर्स थे, लेकिन फिर भी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को दाखिल नहीं करवाते थे. उसकी वजह ये थी, वो ये कहते थे कि भाई आपने जो पढ़ना है ना, आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, हम आपको अकेडमी में दाखिल नहीं करवाएंगे. वजह ये थी कि उनकी स्कूलिंग अच्छी थी, पढ़ाई होती थी. अब हमारे पास चंद एक हैं, वो भी प्राइवेट स्कूल, जहाँ पर पढ़ाई जो है अच्छी होती है, असतज़ा जो है अपना काम जो है बखूबी करते हैं. सो स्कूलिंग मैटर्स अ लॉट. Schooling matters a lot, right? I agree. And one more thing is here कि why parents not allow their children to go to language centers or other centers. ये तो बहुत अच्छा एटीट्यूड है, तो अच्छा बिहेवियर है अगर आप अपने बच्चों को अब जो है सेंटर्स में अकेडमीज़ में एडमिट करवा रहे हैं. और जाहिर है जब चीज़ अगर आपने स्कूल में नहीं पढ़ा, ठीक है आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप सेंटर्स आपके पास हैं, आप पढ़ें. अच्छा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए है हमारे सेंटर का. और एक और भी बात है कि क्यों पेरेंट्स नहीं भेजते. पेरेंट्स का ये माइंडसेट होता है कि अगर वो जाएंगे इवनिंग सेंटर्स में तो वहाँ होती है दिस इज द इशू, दिस इज द मेन इशू. एंटरटेनमेंट होती है, को एजुकेशन सिस्टम इज देयर that they don't like, and basically such things also happen which we also face. So for that we need awareness. We need to aware our students, we need to aware our youth that these things are not permanent. These are temporary, that is the age, but they must understand the thing and they must behave with maturity. They are not kids now, so that they behave like that. Exactly. Wonderful. Okay, Miss, last but not least, can an individual learn English without center?
It depends upon the schooling system and the centers. For me, I would like to put a question here that is learning English difficult, or what difficulties do students face in learning English? Basically, difficulties. भाई जैसे मैं अगर इसको और आसान करूं कि मुझे अगर सेंटर में दाखिला लेना ज़रूरी है, इंग्लिश अगर मुझे सीखनी है, क्या मैं घर पर बैठ के नहीं सीख सकता? जी, आप घर पर बैठकर सीख सकते हैं, लेकिन वहाँ प्रैक्टिस नहीं होगी। वही उस बात पर मैं आ रही हूँ कि बेसिकली डिफिकल्टीज क्या होती हैं हमारे पास। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश एट होम और इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश योरसेल्फ, सो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। टीचर की हमेशा ज़रूरत होती है। उस्ताद क्यों आए, उस्ताद कैसे आए, ज़रूरत थी तभी आए। तो अब आज भी और हमेशा हमें उस्तादों की ज़रूरत होगी। हम भी आज जो कुछ हैं अपने उस्तादों की वजह से हैं। तो डिफ़िकल्टीज तब आपको फेस आएगी कि आप इंग्लिश बोलते वक्त क्या करते हैं, यू थिंक इन उर्दू एंड देन यू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। दैट इज़ द वर्स्ट हैबिट के जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को किल करती है। Exactly. यू मस्ट थिंक इन इंग्लिश एंड यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। जो मीडियम आपके बीच में आता है उर्दू का, उस मीडियम के थ्रू इंग्लिश जो आती है वो नेचुरल नहीं होती है। वो हमें गैप जो है वो रिमूव करना है। जी, व्हेन यू रिमूव दैट गैप, तब आप डायरेक्टली बोल सकेंगे। एक और भी हमसे मिस्टेक होती है, मैं भी करती थी। आई आल्सो यूज्ड टू डू द सेम थिंग। व्हेनेवर समबडी यूज्ड टू सेंड मी सम टेक्स्ट एंड देयर यूज्ड टू बी डिफिकल्ट वर्ड्स। अब बात चल रही है ऐसे और किसी ने यूज कर लिया भाई एक्सट्रीमली, तब उस जमाने में आता नहीं था कि क्या मीनिंग है एक्सट्रीमली की। 9th मैट्रिक में हम खुद भी पता नहीं कैसे इंग्लिश लिखते थे। तो हम गूगल के पास जाते थे, कहते थे कि एक्सट्रीमली इन उर्दू। मीनिंग बता दो, हमें उर्दू का बता दो। हाँ, वो हमारी थी बहुत बड़ी मिस्टेक। आप हर लैंग्वेज को उसके डोमेन में समझें। इंग्लिश को टोटली उर्दू पर रिलाई नहीं कर सकते हम। इंग्लिश वर्ड की आप सर्च करें एक्सट्रीमली इन इंग्लिश मीनिंग। By this thing it is going to help you. Further difficulties we face that students think accent doesn't matter. वो कहते हैं भाई अंग्रेज जैसे ही बोल रहे हैं, वो उनके बोलने का स्टाइल है। मैं तो अपने बोलेंगे सही। मैंने अगर डैट बोलना है तो मैं डैट ही बोलूँगा, दैट नहीं कहूँगा। दैट नहीं कहूँगा, मैंने डैट कहा तो मैं डैट ही कहूँगा। कार कह रहा हूँ तो कार कहूँगा, खार नहीं। खार नहीं, राइट। दैट पाकिस्तान कहना है, पाकिस्तान नहीं कहना है। ठीक है, खार बोलेंगे तो हमें बोलेंगे भाई आप अपना टशन दिखा रहे हैं। टशन दिखा रहे हैं, ये भी राइट। बट एक्सेंट मैटर्स व्हाई एंड हाउ, बिकॉज आपकी लैंग्वेज जो है उर्दू, अगर उसका कोई काफ का को खा कर दे, क्या कर रहे हैं आप, ऐसे कोई अंग्रेज आपकी उर्दू को बोले तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। Definitely. और हर लैंग्वेज की अपनी रिस्पेक्ट और नेचर होती है। तो इंग्लिश को भी एक्सेंट मैटर करता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई मैं अपनी मर्जी की उर्दू बोलूँगा, ऐसा इंग्लिश बोलूँगा या उर्दू बोलूँगा, ऐसा नहीं है। एक्सेंट मैटर्स अ लॉट। अनदर थिंग इज़ दैट ग्रामर को आप फॉलो करें कि स्ट्रक्चर जो बना है, 4 मॉड्यूल्स होते हैं इंग्लिश सीखने के या कोई भी लैंग्वेज सीखने के। स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। जितना ज़्यादा, द मोर यू रीड द मोर यू राइट, द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक। सो लिसनिंग should be an everyday habit. It should be. Okay. Listening helps a lot, क्योंकि हमने उर्दू कैसे सीखी थी सर? हाँ, कैसे सीखी थी? हमने सुन के देख के बिल्कुल ऑब्जर्व। वी हैव टू ऑब्जर्व फर्स्टली, देन वी हैव टू। और हम घर में भी तो ना बच्चे को ऐसे सिखाते हैं ना, कोई बच्चा अगर बोलता है भाई बोलो पानी, तो हम जाहिर है वो सुनता है, ऑब्जर्व करता है, तो वही कहता है पानी। तो जाहिर लिसनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके ऊपर। अच्छा मैम, मिस व्हाट आर क्रूशियल टेक्निक्स बाय दैट एन इंडिविजुअल कैन लर्न इंग्लिश? Technique number 1 is that mostly it happens, students come in center too, but they say miss बोला नहीं जा रहा मिस। जब यहाँ आते हैं हमारा दिमाग से अल्फाज। अच्छा सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू यार, एक बड़ा मुझे मज़ेदार किस्सा याद आ गया। तो जब मैंने इंग्लिश सीखना शुरू की तो हमने अपने टीचर से कहा, यही हमने कहा सर बोला नहीं जा रहा। तो सर ने कहा, हमें एक एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा कि अगर एक बंदा विराट कोहली के पास आए और कहे कि मुझे क्रिकेट खेलनी है, तो विराट कोहली क्या कहेगा? खेलो। क्या कहेगा? खेलो। तो भाई अगर आपको स्पीकिंग करनी है, बोलना है, तो बोलो, व्हाई डोंट यू स्पीक? सो ये एक बड़ा फैक्टर है। राइट। खुद ही करना पड़ेगा आपको, खुद ही। तो सर टेक्निक नंबर 1 जो है कि वो कहते हैं बोला नहीं जा रहा। सो फॉर दैट दे हैव लेक ऑफ प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन। देयर ऑब्जर्वेशन इज वीक एंड दे हैव लेक ऑफ प्रैक्टिस। फर्स्टली, whenever we learned Urdu, so we started observing our parents and elders that what and how are they speaking.
By observing, we learn Urdu. So we also have to learn English by observing English speakers or native speakers. Another thing is practice. The lack of practice is the issue that we all face and most of the students face. Francis Bacon said, "Practice makes you better. Practice makes the person perfect. Practice. Practice is the only thing that can make you perfect." तो प्रैक्टिस में हम क्या करें, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई है नहीं बोलने वाला, मिस किसके साथ बोले? घर में अगर बोलते हैं तो घर वाले कहते हैं आया बड़ा अंग्रेज, अंग्रेज अंग्रेज आ गया। बस कल इंग्लिश सीखिए, आज बस ये 2 दिन क्या सेंटर चले गए, ये भाई हमें अंग्रेज बन के हमारे सामने आ गए। ऐसे सेंटेंसेस हमें सुनने को मिलते हैं यूजुअली। बिल्कुल। तो आजकल इंटरनेट ने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया है। Nowadays you have a lot of applications like Cambly and Hello Talk. On such applications you can talk to foreigners on video call, on voice call, and you can speak in English with them easily. Another thing is that the practice is you must think in English. जैसे पूरा दिन आपको गुजर गया, रात को सो रहे हैं, repeat the whole day in English in your mind, or you can start writing English, or you can start having voice messages with yourself. आप कह रहे हैं कि सोच रहा हूँ, बोल तो नहीं रहा हूँ, आप वॉइस रिकॉर्ड करें अपनी, खुद को ही बताएं, खुद ही सुनें। Great. Practice is the most important thing. Okay. Without practice you cannot be a good speaker. चले, हमने सुना है और देखा भी है आपको बड़ा शेर व शायरी का भी बड़ा शौक है आपको, तो 2-3 लाइन्स हमारे व्यूवर्स के लिए अगर आप सुना दें तो। I would like to give a message. चले, मैसेज के जरिए भी अगर आप सुनाना चाहें तो ठीक है, चलें। Message, you should not blame others. So for that I have a few lines for you. Okay. इरशाद। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। We will have to do ourselves by ourselves. So this is all about for today. I hope you enjoyed our today's podcast. Inshallah, we shall come with another podcast. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz. Allah Hafiz.